Hello student, welcome to Pi Study YouTube channel. In this module of basic concept of physics, we will learn about the momentum, force, torque, energy and the collision time in the projectile motion. So if you have any body which is projected with velocity u and this body makes the angle alpha from the horizontal, तो उस केस में हम किसी टाइम t इक्वल टू 0 के लिए जो मोमेंटम होगा em इंटू वेलोसिटी. सो यहाँ पे वेलोसिटी के कंपोनेंट हमने लिखा x एंड y डायरेक्शन में इन द कंपोनेंट ऑफ इन वेक्टर कंपोनेंट. सो u cos अल्फा i प्लस u sin अल्फा j एंड एट टाइम t, किसी टाइम t पे बॉडी अगर यहाँ से फेंकी गई तो किसी हाइट पे पहुँच जाएगी. सो एट दिस टाइम द वेलोसिटी विल बी चेंज. सो द मोमेंटम एट टाइम t इक्वल टू m into u cos alpha I plus u sin alpha minus gt j. So this is the vector denotation. Now the change in the momentum is equal to pt minus p naught. So delta p is equal to minus mg t j. So delta p is equal to mg t minus j. तो यहाँ पे माइनस जे क्या शो कर रहा है? द डायरेक्शन along the downward. So the change in the momentum, the magnitude of change in the momentum is mg into t. Now if you can plot this, the relation between the momentum and time. So this is the linear relationship because delta t proportional to linearly proportional to t. So the slope is represented by mg. So the force acting on that projected body, it is mg and this is the slope of this line. So if you have this kind of relationship, so if you have two time instant at time t1 and t2, you have change in momentum delta p1 and delta p2, so you can calculate the relationship or ratio of the momentum at these two instant. Now force is the rate of change of momentum. So force is equal to delta p by delta t. This is mgj. So mg in negative direction. So the force acting on the projectile motion on the projected body, it is mg in the downward direction. Now angular momentum and torque. So when you have any body which is rotating with a radius and some kind of movement, then for case of rotation you have the angular momentum. So at time t, if you have radial vector like this as you have used in the previous case, so this is u cos alpha t plus u sin alpha minus gt half minus half gt square from the second equation of motion. This is radial vector and momentum is this what you used in the previous case. So for the angular momentum you have to calculate the cross product of radial vector and momentum. So when you will calculate the cross product of this radial vector and moment, you will get to know that the angular momentum is equal to half mu cos alpha gt square minus k. So this minus k is the unit vector along the negative k direction. So if you will take the magnitude of this angular momentum, then you will get to know L is equal to half mu cos alpha gt square. So from this case you will know the angular momentum is proportional to the square of time. So the plot of L and t is like this. Now you have know how you can calculate the L is equal to half mu cos alpha gt square. So if at any point at any time t, the height of this projected body is half gt square and this momentum is mu cos alpha. So the torque, the definition of torque is rate of change of angular moment and definition of moment is rate of change of force. So when you need to calculate the force, then this is the force is the rate of change of
momentum, linear momentum, and when you will calculate the torque, this is the rate of change of angular momentum. So when you take the first derivative with respect to time, then you will get the torque equal to mgu cos alpha into t. This is the mu cos alpha gt. अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि जो एंगुलर जो टॉर्क है वो प्रोपोर्शनल टू टी है. सो यू कैन फाइंड द अदर रिलेशनशिप. अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई एक बॉडी है जिसका मास 1 kg है, ये 20 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट की जा रही है एट एंगल 45 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल. नाउ इन दिस केस यू हैव टू फाइंड द टॉर्क एट मैक्सिमम हाइट. तो अगर कोई बॉडी, इस बॉडी को हम यहाँ से प्रोजेक्ट करते हैं तो ये द पाथ कैसा होगा प्रोजेक्टेड बॉडी का, पैराबोला. सो इट विल बी गो लाइक दिस एंड गो एट दिस सरफेस. सो it will take total time t from going air to air. It will take time t. So the maximum height is at t is equal to t by 2. From this to this it is t by 2. So small t is equal to t by t. So how you will calculate the capital T? Capital T is the flight time. Flight time is equal to 2 into the velocity, which is projected body in upward direction divided by the acceleration which is opposing the motion. So 2 into the vertical component of this velocity is 10 root 2 divided by g, that is 10. So you have time t is equal to root 2. Now torque is equal to mgu cos alpha into t. So just you know mgu alpha and t, just put in this expression and you will get the torque is equal to 200 Newton meter. Now the next case is velocity and the direction of the projected body after time t. आपने यहाँ देखा कि यहाँ पे u वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है और एंगल अल्फा बना रहा है हॉरिजॉन्टल से. फिर किसी टाइम t के बाद आफ्टर टाइम t वेलोसिटी v हो जाती है, तो इसके भी 2 कंपोनेंट हो जाएंगे और यहाँ भी 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन. तो क्या होगा कि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो ऑलवेज सेम रहेगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में ग्रेविटी या और कोई एक्सेलरेशन है नहीं. So v cos beta is equal to u cos alpha. V sin beta is equal to u cos alpha minus gt. This is for the vertical direction, vertical upward direction, and gravity downward है इसलिए minus g हो गया. Now this term को स्क्वायर करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, then we will get v is equal to root over u square plus gt square minus 2u sin alpha into gt. So this equation we will use in the next slide for some calculation. अब यहाँ पे इक्वेशन 2 को फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे, तो tan बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा माइनस जी टी बाई यू कॉस अल्फा. अब एक क्वेश्चन सॉल्व, अब एक और चीज़ देखते हैं कि अगर हमें इसको प्लॉट करना है, tan बीटा और t में प्लॉट करना, तो कैसे प्लॉट करेंगे. tan बीटा को वाई एक्सिस पे रखेंगे और टाइम को एक्सिस पे रखेंगे. तो इस tan अल्फा को हम m मान लेते हैं, दैट इज दिस यम को क्या मान, इंटरसेप्ट मान लेते हैं tan अल्फा को, और g बाई यू कॉस अल्फा को क्या मान लेंगे हम, स्लोप. तो स्लोप क्या होगा, m इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू g बाई यू कॉस अल्फा. तो इसका हमें जो प्लॉट आएगा इस टाइप से आएगा. सो दिस इंटरसेप्ट इज tan अल्फा, दिस इंटरसेप्ट इज माइनस tan अल्फा, एंड द स्लोप इज m इक्वल टू tan थीटा g बाई यू कॉस अल्फा. अब आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि कोई बॉडी है, उसको किस वेलोसिटी और किस एंगल से प्रोजेक्ट किया जाए, और उसके लिए ये रिलेशनशिप दिया है tan बीटा और t में. नाउ फ्रॉम दिस यू विल नो दिस tan अल्फा इज इक्वल टू रूट 3, इंटरसेप्ट ऑफ दिस इज tan बीटा एक्सिस, दिस इज t. सो द इंटरसेप्ट दिस वन इज tan अल्फा, सो tan अल्फा इज इक्वल टू t अल्फा इज इक्वल टू 60. नाउ द स्लोप is equal to tan theta is equal to g by u cos alpha. So theta you know and g you know, alpha you know, and you can calculate from this. तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, किस वेलोसिटी से फेंकेगा, 15 मीटर पर सेकंड से. अब इस ट्रायंगल इनक्वालिटी, इस ट्रायंगल से क्या हम देख पा रहे हैं, tan 53 is equal to this divided by t by 2. तो tan 53 is equal to root 3 divided by t by 2. तो t क्या आ गया, 3 root 3 by 2. फिर नेक्स्ट पे आप पूछा जा रहा है कि वेलोसिटी एंड डायरेक्शन एट हाइट एच. अभी हमने टाइम पे कैलकुलेट किया, अब जब बॉडी यहाँ से इधर जा रही तो कितने इस हाइट एच पे इसकी वेलोसिटी और डायरेक्शन कितनी होगी.
तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी हमेशा सेम होती है, या तो यहाँ पे देखेंगे आप यहाँ पे, तो एक्स कंपोनेंट को हमने इक्वल कर दिया। वाई कंपोनेंट को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि हमें इन टर्म्स ऑफ हाइट लिखना है, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लगा देंगे। तो वी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2gh। अब दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर माइनस 2gh। अब इक्वेशन इस फर्स्ट इक्वेशन को स्क्वायर करेंगे और सेकंड स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो टेन स्क्वायर बीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा माइनस 2gh बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। अब हम इसको प्लॉट करेंगे, टेन बीटा को वाई एक्सिस पे और एच को एक्स एक्सिस पे, तो ये क्या मिल जाएगा, पैराबोला मिल जाएगा। नाउ देन वी विल कैलकुलेट द एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट। हमने कैलकुलेट किया मैक्सिमम हाइट कब मिलती है, टी इक्वल टू टी बाई 2 पे मिलती है, और हमने मान लिया एच जो है हाइट है। तो एट हाइट एच पे जो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, वी यहाँ पे क्या है, यू कॉस अल्फा, सो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। अब के इक्वल टू ई कॉस स्क्वायर अल्फा, क्योंकि टोटल एनर्जी बॉडी की कितनी है, अगर यू वेलोसिटी से फेंकी जा रही है, हाफ एम यू स्क्वायर, सो ई कॉस स्क्वायर अल्फा, यहाँ से कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, रूट ओवर के बाई ई। नाउ पोटेंशियल एनर्जी यू इक्वल टू क्या होगी, एम जी एच, सो एम जी एच को क्या लिख सकते हैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g। नाउ यू इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, इसको क्या लिख सकते हैं, यू इक्वल टू ई साइन स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ से साइन अल्फा क्या हो जाएगा, रूट ओवर यू बाई ई, एंड फ्रॉम दिस एंड दिस इक्वेशन यू कैन राइट टेन अल्फा इक्वल टू रूट ओवर यू बाई के। नाउ एनर्जी आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी के बाद एनर्जी क्या होगी, के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, सो हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू, अब वी हमने पीछे निकाला था, उस वी को यहाँ पे पुट कर देंगे, यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u साइन अल्फा जी टी के। अब यम से इसको मल्टीप्लाई करेंगे अलग अलग टर्म में, तो हमें क्या मिल जाएगा, के इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर प्लस हाफ एम जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस एम जी साइन अल्फा जी टू टी। तो इसका जब हम के और टी में प्लॉट करेंगे तो ये क्या होगा, इन्वर्टेड पैराबोला बन जाएगा, इन्वर्टेड सर्कल बन जाएगा, क्योंकि इसको हम सॉल्व करेंगे फॉर पोटेंशियल एनर्जी। तो दिस इज द पैराबोला नॉट द सर्किल इन टर्म्स ऑफ पैराबोला। नाउ स्टैटिक एनर्जी क्या होगी, एम जी एच एम जी यू साइन अल्फा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब यहाँ से इसको टर्म को सेपरेट कर लेंगे और इसका हम प्लॉट करेंगे u वर्सेस टाइम। अब यहाँ पे t का कोफिशिएंट पॉजिटिव था, इसलिए ये पैराबोला इस टाइप का बना। अब यहाँ पे टी स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो उसका जब हम प्लॉट बनाएंगे तो ऐसा बन जाएगा। इफ़ यू वांट टू नो हाउ टू ड्रा द प्लॉट, देन यू गो टू द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स on the Pi Study YouTube channel. You will get to know how to draw the plot. अब इसको और इसको हम क्या कर लेंगे, एक साथ प्लॉट कर लेंगे। तो इसको जब प्लॉट करेंगे तो यह काइनेटिक एनर्जी का बनेगा, यह पोटेंशियल एनर्जी का प्लॉट बन जाएगा ऑन द टाइम एक्सिस। सो आपके पास तीन कंडीशन है कि इसमें से कौन सा सही है। तो अगर आपकी u इज लेस देन k है और अल्फा इज लेस देन 45 है, तो इस टाइप का प्लॉट बनेगा, टोटल एनर्जी वर्सेस काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर u इक्वल टू k है, अल्फा इक्वल टू 45, तो दोनों प्लॉट एक दूसरे को टच करेंगे। अगर u इज ग्रेटर देन k है और अल्फा इज ग्रेटर देन 45, दोनों एक दूसरे को इंटरसेप्ट करेंगे, और ये वाला केस पॉसिबल नहीं होगा। नाउ एनर्जी एट हाइट कितनी होगी, किसी हाइट पे एनर्जी कितनी होगी। अगर किसी बॉडी को u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तो k इक्वल टू क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, वी स्क्वायर क्या होता है एट हाइट एज, यू स्क्वायर माइनस 2gh, सो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस एम जी वाई, सो ई के इक्वल टू ये टोटल एनर्जी ई माइनस एम जी इंटू वाई। अब इसका प्लॉट करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा, यहाँ पे y का कोफिशिएंट नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव साइन, इसलिए नेगेटिव डायरेक्शन में इसका स्लोप आ जाएगा। तो यहाँ पे जो टेन थीटा होगा ये एम जी होगा।
Now in a similar way you can also plot for potential energy U like this, and if you plot both the case, then you will get the different situation which is depending upon the value of alpha and the magnitude of potential energy and kinetic energy. अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि किसी एक बॉडी है, उसको यहाँ से हमने फेंका, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकंड है, इस डायरेक्शन में कितना है 4 मीटर पर, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कितना है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि रेडियल कंपोनेंट वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, फिर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच का एंगल 120 है। अब इनको हमें 90 डिग्री पे रिजॉल्व करना है, तो हमने इस वेलोसिटी को रिजॉल्व कर लिया। इसका जो वाला कंपोनेंट आ जाएगा 4 cos थीटा 2√3 आ जाएगा। अब जो आपका सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन होता है, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v²/r, तो वहाँ से r क्या हो जाएगा v²/ac, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे v तो आपका दिया है, एक्सेलरेशन कितना है दिस g cos बीटा इन द डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दैट, तो यहाँ से rc क्या हो जाएगा 2√3 दिस, और यहाँ 4 क्या हो जाएगा, इसके परपेंडिकुलर जो एक्सेलरेशन है 4 वो हो जाएगा, तो rc क्या हो जाएगा 3 मीटर। नाउ फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट। अब किसी बॉडी को यहाँ से फेंका गया वेलोसिटी u से एंगल अल्फा से, तो जब यहाँ इस पॉइंट पे पहुँचेगी जिसका कोऑर्डिनेट x एंड y है, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, यू नो v इक्वल टू r ओमेगा, वेयर ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी, v इक्वल टू वेलोसिटी एंड r इक्वल टू द रेडियल डिस्टेंस, तो ओमेगा इक्वल टू क्या होगा v/r। अब v कौन सा होता है, जो रेडियल कंपोनेंट के परपेंडिकुलर होता है, तो ये बॉडी जब यहाँ से इधर पहुँचेगी तो इधर वाली वेलोसिटी क्या होगी u cos अल्फा। अब ये एंगल हमने मान लिया कि यहाँ से थीटा बना रही है, क्योंकि हमें इसका इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, तो हम थीटा भी निकाल लेंगे, तो ये u cos अल्फा हुआ। अब इसको हम करेंगे इस लाइन के परपेंडिकुलर रिजॉल्व कर देंगे, इस ये वाला कंपोनेंट लेंगे तो u cos अल्फा, तो इसका जब ये वाला कंपोनेंट लेंगे क्या हो जाएगा u cos अल्फा sin थीटा। अब जो ओमेगा इक्वल टू जो वेलोसिटी हम कंसीडर करेंगे, ये वाली वेलोसिटी कंसीडर करेंगे, ये डिस्टेंस कंसीडर करेंगे, तो u cos अल्फा sin थीटा बाई r, u cos अल्फा sin थीटा को y/r² लिख सकते हैं, फिर r² की वैल्यू कितनी हो जाएगी x² प्लस y², सो ओमेगा क्या हो जाएगा u cos अल्फा y/x² प्लस y²। So these are the some conceptual understanding about the projectile motion and some physical quantity and some produced quantity relationship of the projected body. So in next module we will we will learn the motion of the body with its cause, that is the kinematics of body. So this is very important in the physics. So thank you very much. And again, if you want to learn more and more, revise more and more, and if you haven't subscribed the Wi-Fi Study YouTube channel, subscribe and share, and thank you again.